I hope now you can see the screen. दिख रहा है सब लोगों Yes, को? sir. Yes, sir. Yes, sir. So, okay, fine. So, our objective is what? To determine the Fe plus 2 ions in FeSO4 heptahydrate in given sample by 0.05 normal KMnO4. This is our main objective, right? Now, let's start this video, and wherever it is necessary, I will pause it and I will explain it one by one step. So this is our objective, to determine the amount of Fe plus 2 ions in FeSO4 heptahydrate given sample by using KMnO4. Okay. Are you able to hear the music also? No, sir. No, sir. म्यूजिक नहीं आ रहा है ना? No, sir. ओके, तब तो ठीक ही है. फाइन. So these are the apparatus: burette, pipette, conical flask, beaker. These are the apparatus we will require for the practical. Then chemicals: 0.05 normal KMnO4, 2 normal H2SO4. Role of H2SO4 is very important question, right? In your exam, they can ask you what is the role of H2SO4 or why we are adding H2SO4, right? So please, now let's go for प्रैक्टिकल ऑल्सो. हम लोग पूरा आपको लाइव आपके सामने ही प्रैक्टिकल हो रहा है, वैसे ही आपको दिखेगा, राइट? ओके. सो इन दिस केस again we are using KMnO4 and FeSO4, which is really redox titration. So first part, yeah, these are the chemicals which are required: FeSO4.7H2O, which is analyte, twice 2 normal H2SO4, 0.05 normal KMnO4, that is a titrant, and distilled water for the washing purpose of apparatus. This is your funnel, this is your burette, right? And this is your conical flask, this is your pipette. Now don't suck any solution by mouth. आपको एक पिपेट पंप दिया जाएगा, आपको वो पिपेट पंप से ही हमेशा चीजें लेनी है, मुंह में कुछ भी टच नहीं करना है, ठीक है? So this is our real chemistry laboratory of Nirma University. Now this is the procedure. This is the procedure. सबसे पहले आपको KMnO4 solution burette में भरना है. You have to fill KMnO4 solution. Then 10 ml and 0 adjust करना है आपको burette में. Take 10 ml of solution with the help of pipette in conical flask. As I told you that you have to be very careful. Do not touch pipette to your mouth. You will be given a solution suction pump. अभी आप देखेंगे कि कैसे उसको किया जाता है सक्शन, वो भी दिखाएंगे. इट्स वेरी सिंपल यूज, इतना डिफिकल्ट नहीं है. देन यू हैव टू add half of the test tube of 2 normal H2SO4. Role of H2SO4 is very important. Again, I'm telling you that it can act as a catalyst. It gives acidic medium also, right? And again, it is a strong acid which can provide 2 protons. Now, this is the filling up of your burette. You can see KMnO4 is a very beautiful purple pink colored solution. This is our real laboratory of Nirma University. We are performing the practical. So now this is a suction pump. You can see there is a roller. You have to just move up or down. So your solution will be sucked in this pipette. We have to take 10 ml. 10 ml sample लेके आपको, you can see here, ये पार्ट में आपको दिख रहा है, ये पार्ट, यहाँ पर 0 एडजस्ट करना है यहाँ पर, ठीक है? तो बेसिकली
you have to adjust the 0. This is -3, -2, -1 and 0 here, right? So after taking exact 10 ml solution, you have to just push the roller. बस इतना ऊपर गया है उतना उसको पुश कर देना है. Now you have to add 2 normal H2SO4. You have to take that solution, all the solution in a conical flask. Half of the test tube almost. थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है तो चलता है. It's okay. And now we are going for the first pilot reading. हम लोग पहले पायलट रीडिंग लेंगे. हमको पता है पायलट रीडिंग क्या है. रेंज कंफर्मेशन रीडिंग. इट्स अ रेंज कंफर्मेशन रीडिंग. सो यू हैव टू add 1 ml because we have to confirm first range. 1 ml का आपको इंक्रीमेंट देना है सोल्यूशन में, ऐड करते जाना है, राइट. स्टिल कलर इज नॉट देयर बिकॉज Fe+2 आयंस जितने भी हैं वो MnO4 को सीधा Mn+2 में कन्वर्ट कर रहे हैं. दैट्स व्हाई कलर इज नॉट ऑब्टेन्ड, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोथ आर गोइंग ऑन. तो अभी हम लोग थोड़ा सा ओके. तो नाउ दिस इज योर, यस यू कैन सी हियर कि आपका कलर आ गया. मतलब ये हुआ कि नाउ योर एंड पॉइंट इज देयर, it has reached. But this is your pilot reading, so it is not a exact reading because 1111 ml increment we have gone through, right? First we have to note down the pilot reading in from the burette. You can see here burette में आपका जो रीडिंग आ रहा है वो आ रहा है around 9 ml. Very clearly it can be seen. You can see 9 ml के आसपास आपका रीडिंग आ रहा है. ठीक है. So your burette reading is 9 ml. That means your final accurate reading will be definitely between 8 and 9 because 8 ml तक आपका reading नहीं आया. Is it? So your accurate reading is to be determined now with the increment of this titrant KMnO4 up to 7 ml or 8 ml continuously, because we know that up to 8 ml it is not going to change the color. कलर नहीं बदलने वाला है. तो 8 ml तक तुम डाल ही सकते हैं, 7.5 तक डाल दो. फिर बाद में देन यू हैव टू गो फॉर ड्रॉप बाय ड्रॉप, क्योंकि अभी आपको एक्यूरेट रीडिंग लेना है, राइट. सी नाउ यू हैव टू कैलकुलेट और सॉरी यू हैव टू टेक द रीडिंग ऑफ फर्स्ट. यू हैव टू टेक 3 टाइम्स. सिमिलरली अगेन इसको 0 कर दिया. अब हमने 7 ml तक तो फटाफट डाल देना है. देखिए एकदम स्पीड में जा सकते हैं हम. 7 ml या 8 ml तक आराम से स्पीड में डाल दो, राइट. अब यहां पर थोड़ा सा लाइट कलर आ गया है, लेकिन अभी भी एकदम बढ़िया वाला पिंक, लाइट कलर पिंक. ये थोड़ी देर में शायद हो सकता है उड़ भी जाए. तो अभी और एक ड्रॉप लगेगा, और एक ड्रॉप लगेगा. लाइट पिंक हो गया, देखो काफी कलर ऑलमोस्ट नील जैसा हो गया. तो अभी एक और ड्रॉप या थोड़ा सा और ऐड करेंगे. बहुत थोड़ा सा ऐड करना है, ज्यादा नहीं करना है बस. अब आपका फाइनल कलर आ जाएगा. यस, दिस इज लाइट पिंक कलर. यू कैन कंपेयर द कलर. रिमेंबर यू कैन कंपेयर द कलर. सी आपका कलर कैसा था. देखो एकदम डार्क कलर था फर्स्ट, राइट. पायलट रीडिंग था ना, क्योंकि उसमें तो हमने डाल दिया था पूरा. नाउ वी हैव गॉन थ्रू द कलर स्लोली. तो अभी दिस इज योर लाइट पिंक कलर. दिस इज योर एग्जैक्ट एंड पॉइंट. अगर इससे भी थोड़ा कम होगा तो अच्छा होगा. ये भी थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन इससे भी कम होगा. नाउ योर रीडिंग should be lying between 8 to 9. You can see here the reading is around, this is your 8.1.2. So your reading is 8.2, right. अच्छा, तो ये साथ साथ में आप करते जाइए.
आपके पास रिकॉर्ड बुक रेडी है, यू हैव रेडी रिकॉर्ड बुक विथ यू. So now you will first write the pilot reading as 9. Initial reading जो है आपका वो क्या आएगा 0. Final reading 9. So difference will be 9. Okay. अब फर्स्ट रीडिंग आपका आएगा, जो रीडिंग आएगा इनिशियल 0 लेना है, हमेशा 0 कर देना है ब्यूरेट को. And your 8.2 is the reading, first reading. Similarly, you have to take 3 readings. Right now the same procedure is there, so we didn't take all 3 readings, only one reading to demonstrate the practical हमने ये आपको करवाया है. ठीक है, मैं पूरा प्रैक्टिकल एक बार फिर से भी चलाऊंगा, डोंट वरी, चिंता मत करो. ठीक है. So now the part is your second reading. First reading is 8.2. You can write all 3 readings as 8.2. You can see it is very clearly seen. 8.2 is your reading. 8.2 is your reading. So write down the readings as 8.2, and constant reading will be also 8.2. Remember, as we have gone through the rules also, रूल्स में हमने क्या पढ़ा था, आफ्टर फिनिशिंग द प्रैक्टिकल आपको क्या करना है, कौन बताएगा मुझे. आफ्टर फिनिशिंग द प्रैक्टिकल क्या करना है आप लोगों को, कुछ एक्टिविटीज मैंने बोली थी करनी है आपको, क्या क्या थी वो बताइए. सब क्लीन करना आई थिंक. यस, you have to wash the apparatus what you have used. Again you have to put all the solutions whatever you have taken on its proper place, and also all the glasswares you have to keep at a right place from where you have taken, right. यही चीज आपको दिखा रहे हैं. यहाँ देखो, यहाँ पर आपका डिस्टिल्ड वाटर से हमने पूरा फ्लास्क और सब कुछ वॉश कर रहे हैं हम लोग अच्छे से, बढ़िया से. ठीक है, उसको उसके बाद फिर हम लोग देखो, जो आप देख रहे हैं कि केमिकल बचा हुआ है आपका 0.05 नॉर्मल, तो उसको हम पूरा वापस निकाल रहे हैं. We are taking out and we are putting again in its beaker so that the chemical should not be wasted out, right. पूरा केमिकल हम वापस रखेंगे जहां से लिया है वहां पर. देखिए सारे केमिकल्स जहां लिए थे वैसे वहां पर रख दिए हैं हम लोगों ने, right. Again, yes, burette should be also properly washed. अच्छे से डिस्टिल वाटर से प्रॉपरली वॉश करनी है आपको, बढ़िया से रिंस कर लेनी है. देखो कैसे किया जा रहा है उसको, मेथड. यू हैव टू बी वेरी वेरी keen observer when practical is going on. This practical has been performed in our Nirma laboratory only. Right? So you have to wash properly burette, पूरा एकदम अच्छे से वॉश कर लेना है. Yes, now you have to detach the pump from the pipette. ये पंप है आपका, इस तरह से इसमें ब्यूरेट पिपेट अंदर सेट हो जाती है, वैक्यूम से पूरा बस मस्त फिट हो जाती है. नाउ यू हैव टू वॉश योर पिपेट प्रॉपरली बिकॉज यू हैव pipeted out the FeSO4 solution with the help of this pipette. Again you have to attach the pump, pipetting pump, to the pipette so that next practical you can very easily, next person who will come after the batch, he will be able to perform the practical properly. देखिए ये कैसे यूज होता है. नाउ दिस इज द यूज ऑफ पिपेट. उसका रोलर है यहाँ पर, जस्ट उसको घुमाना है आपको बस, राइट. तो वो ऊपर जाएगा तो सक्शन करके सोल्यूशन ऊपर जाएगा, और फिर वो पंप का जो प्लंजर है, प्लंजर को आपको दबाना है तो सोल्यूशन इसमें से निकल जाएगा. अल्टरनेट वे, देर इज वन मोर की हियर. यहाँ पर एक छोटा सा की है, उसको दबाने से भी आपका सोल्यूशन बाहर आ सकता है. देखिए ये प्लंजर ऊपर नीचे करेंगे, राइट, तो आपका सक्शन होगा, नीचे करेंगे तो आपका विड्रॉल हो जाएगा अंदर से.
ये की से भी आप विड्रॉ कर सकते हो। एक बार आपने ब्यूरेट भर दिया, उसके बाद ये की आप दबाओगे तो भी हो सकता है, या तो रोलर से भी कर सकते हैं। बोथ द वेज आर ओके, फाइन, राइट। ओके, फनेल हैज टू बी वॉश्ड प्रॉपरली, अच्छे से पानी से वॉश करनी है उसको, जैसा था वैसा लगा देना है। देखिए आप, जैसा है वैसा ही पूरा लगा देना है आपको। यस। नाउ व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस वी हैव गॉन थ्रू? ऑब्जर्वेशन हमने क्या किया? ब्यूरेट 0.05 नॉर्मल KMnO4 सोल्यूशन हमने भरा था। यस, कॉनिकल फ्लास्क में हमने दो चीजें ली थी, सोल्यूशन एंड H2SO4, राइट। इंडिकेटर हमने KMnO4 लिया था। इट इज अ सेल्फ इंडिकेटर विच विल indicate the end point, and the change of color at the end point will be your KMnO4, sorry, this colorless to pink, right? Reaction is there, MnO4 minus 4, सॉरी MnO4 माइनस आएगा, वो गलती से 4 ऊपर चला गया है। एंड obviously hydrogen means H plus ion presence is very important because acidic medium is required. 5 electrons will be accepted by Mn plus 7, and by this way it will go to Mn plus 2. Okay, and water will be produced. This Fe plus 2 will be converted into Fe plus 3. It will release the 5 electrons by getting oxidized, and these 5 electrons will be accepted by Mn plus 7. So overall reaction will be MnO4 minus plus 8H plus 5 Fe plus 2 gives Mn plus 2, Fe plus 3 and 4H2O. These are the basic reactions and observations, right? So it's a very simple practical. Again, इसमें कुछ इतना ज्यादा नहीं, ये थोड़ा मिस्टेक है, ये 4 एक्चुअली सबस्क्रिप्ट होना चाहिए था, लेकिन वो गलती से सुपरस्क्रिप्ट हो गया है। तो या यू हैव टू टेक द करेक्शंस। एक मिनट, समवन इज आस्किंग मी, क्या पूछ रहे हैं भाई आप लोग? एक जस्ट मिनट, मैं चेक करूं, कुछ क्वेश्चन है। सर रिएक्शन में Fe+2 कहाँ से आ गया? भाई Fe+2 का तो सोल्यूशन ही लिया था हमने। हमने सोल्यूशन किसका लिया था? सैंपल सोल्यूशन किसका था? वही तो मैंने पहले बताया। Fe+2 कहाँ से आ गया? तो Fe+2 का तो हमारा सोल्यूशन था, जिसको हमको रिड्यूस ऑक्सीडाइज करना था। Fe+2 had to be oxidized to Fe+3 with the help of KMnO4. इसका मतलब आपका ऑब्जेक्टिव सही से आपने पढ़ा नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव ही Fe+2 का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, राइट? सो नाउ यू हैव टू, आई एम जस्ट ओके, टेल मी, इज इट रिक्वायर्ड टू प्ले दिस वीडियो अगेन? बोर हो रहे हो तो मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आपको करना है तो मैं करूं फिर से। रिक्वायर्ड टू प्ले दिस वीडियो अगेन? आप अगर चाहते हैं तो मैं वीडियो चालू करता हूं फिर से। यस और नो? सर यस, बोलिए। यहाँ पे हमने सबसे पहले पायलट रीडिंग लेना है, तो उसमें ओके, 8.2 आया। 8.2 नहीं लिया बेटा, हमने पायलट रीडिंग 9 लिया ना। हमारा फर्स्ट रीडिंग कितना आया था? देखो, मैं बताता हूँ आपको, हमने रीडिंग कितना लिया। हाँ बोलिए। 9 लिखा, लेकिन आया तो 8.2 ना। हाँ तो 9 इज द पायलट रीडिंग, दैट इज व्हाट रेंज कंफर्मेशन रीडिंग। देखो बाद में 8 तक तो आया नहीं, 8 तक तो आया नहीं था रीडिंग। फिर आपने 9th ml डाला। लास्ट टाइम ये डिस्कशन हुआ था ना अपना कि 9th ml में रीडिंग आया, इसका मतलब हमने तो लमसम 1111 ml डाला ना। So if I'm adding 111 ml every time, I will not be able to judge exact reading. लेकिन 0.1 डालूंगा तो शाम तक प्रैक्टिकल नहीं होगा मेरा। आ रहा है समझ में? इसलिए 11 ml करके हमने एक कंफर्म निकाल दिया कि ओके, up to the 8 ml I'm not getting the reading, but 9th ml I'm getting the reading. It means my reading is lying between the 8 and 9.
तो इसीलिए तो 3 और बार करना होता है ना प्रैक्टिकल। फर्स्ट सेकंड थर्ड आपने टेबल बनाया होगा तो 3 बार और करेंगे तो हमारा रेंज कंफर्मेशन के बाद 3 बार करेंगे तो वो हम 8 तक तो एकदम से डाल देंगे परफेक्ट। उसके बाद पॉइंट वन ड्रॉप वाइज डालेंगे, क्यों? क्योंकि एक्यूरेट रीडिंग निकालना है। वी हैव टू डिटरमाइन द एक्यूरेट रीडिंग। तो हमने पॉइंट वन डाला तो हमको पता चला कि 8.2 पे एक्चुअली रीडिंग आ गया था। 9 तक तो हमने पूरा डाला था, इसलिए पिंक डार्क पिंक हो गया था, राइट? सर सर समझ में मैं आ ये गया? नहीं पूछ यस यस, यहाँ पे बताओ। 8.2 इसमें रीडिंग आया तो हमने 9 लिखा पायलट रीडिंग में, तो बाद हम पहला वाला जो रीडिंग ले गए तो 8.2 हाँ, से 9 तक हमें ब्यूरेट खाली कर देनी है। ना 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 ना, जहां पर आपका कलर आ जाता है वहां पर रुक जाना है। इट मींस यू गॉट द कलर एट 8.2, दैट्स ओके। 8 पॉइंट इज योर एक्यूरेट रीडिंग। पायलट रीडिंग इज नॉट योर एक्यूरेट रीडिंग, 8.2 is your accurate reading. So now in your 3 columns you will write 8.2, 8.2 and 8.2. Initial reading will be 0, right? चलो मैं आपको एक काम करता हूँ, वीडियो को अभी स्टॉप करके वो थोड़ा सा आपको वो प्रेजेंटेशन के ऊपर चला जाता है हम लोग, उसका टेबल दिखाता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। लेट मी डू दैट। ओके, मैं अभी आपके साथ फिर से शेयर कर रहा हूँ अपना प्रेजेंटेशन, ठीक है? तो ओके, अब मैं आपको दिखाता हूं यहां पर कि कैसे करना है, ठीक है? देखिए, सी दिस इज योर टेबल। सब लोगों को दिख रहा है टेबल मेरा स्क्रीन पे? Yes, sir. तो इनिशियल रीडिंग वाज Yes, माय sir. जीरो, माय रीडिंग वाज जीरो, राइट? एंड फाइनल रीडिंग पायलट है ये, तो हमेशा पायलट रीडिंग इंटीजर में आएगा, so 9 ml, so difference will be 9 ml। अब मैंने फर्स्ट रीडिंग दिया, इनिशियल जीरो करना है हर बार, तो मेरा रीडिंग एक्यूरेट आया 8.2 ml, so difference will be 8.2 ml। सिमिलरली 0.0, यहाँ पर भी 0 लिखना है। याद रखो, यहाँ पर आप हमेशा सिंगल डिजिट लिखोगे। फर्स्ट पायलट रीडिंग विल बी ऑलवेज सिंगल डिजिट, नो फ्रैक्शनल डिजिट। तो यहाँ पर आपका अगेन मैं लिख देता हूँ 8.2, 8.2 एंड 0, 8.2 and 8.2. So obviously all these 3 readings are same. Right now you are not performing, so you can take these readings, no problem for the calculation, right? So my constant reading is 8.2. As I told you that you have to get at least 2 consecutive readings same। आपको 2 सेम रीडिंग लाने हैं। 8.2, 8.2, 8.2 तीनों सही है, बढ़िया है, वेरी गुड। लेकिन अगर एक थर्ड रीडिंग अगर आपका यहाँ पर कुछ भी आता है तो ए एम एल जो है, A1, A2 एंड A3 ये जो लाए आप, ठीक है, A1, 2 एंड 3, तो ये तीनों में प्लस और माइनस 0.2 ml से ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। फर्स्ट थिंग इज एटलीस्ट फर्स्ट सेकेंड और सेकेंड थर्ड consecutive 2 readings must be same, and the third reading, if any variation is observed, the variation should not be more than plus or minus 0.2 ml। ध्यान रखो ये चीज का, राइट? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। सो नाउ योर रीडिंग्स आर रेडी। So readings are ready, then with that we can go for the calculation। Very simple। हमारा कांस्टेंट रीडिंग जो आया वो ये है, ये वाला, ठीक है? हमारा कांस्टेंट रीडिंग जो आया वो ये है। ए एम एल को 0.0028 से मल्टीप्लाई करना है। 0.0028 से ए एम एल कितना है? 8.2। दिस इज योर 8.2 ml। So the answer is 0.02296।
0.02296। ओके, ये आपका आंसर आ गया बी। बी मतलब कि आपका इतना ग्राम जो है, इट इज देयर इन 10 ml। दिस इज इन 10 ml, क्योंकि हमने कितना लिया था सॉल्यूशन, 10 ml लिया था। तो वॉट एवर द आंसर वी आर गेटिंग, इट इज इन 10 ml। ओके, नाउ 10 ml sample contained 0.02296, that is B। तो 1000 ml में कितना, अल्टीमेटली यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट, राइट। तो B के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो आपका आ जाएगा 2.296 ग्राम पर लीटर, बिकॉज दिस इज द रीडिंग 8.2 is in a 10 ml। we have to calculate the things in gram per liter। so 10 ml में इतना है तो 1000 में कितना होगा, बस 100 से मल्टीप्लाई कर दो। that is your answer। the answer is 2.296 ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन आपको दिया गया है।